हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? हार्टली वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल दैट इज स्टिल अ लर्नर। Actually, this is my first video on YouTube. The main intention, the main maqsad of making this channel is to share my knowledge with you all guys. Actually, I am feeling very nervous because I have never done this before. आपसे इस तरह से बात करना and facing the camera, these all are first experience for me. English is not a very difficult language. Actually, English is very easy language. अगर हम बेसिक्स से पढ़े, अगर हम बेसिक्स को जाने तो इंग्लिश हमारे लिए एकदम आसान बन जाएगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एकदम ज़ीरो लेवल से चलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक पे जंप करें। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी विल स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। English alphabet. English alphabet consisting of 26 letters, right? इन 26 लेटर्स को हम टू फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज अपर केस लेटर्स एंड सेकेंड वन इज लोअर केस लेटर्स. What are uppercase letters? Uppercase letters are nothing but capital letters and these are small letter case. और इन लेटर्स को हम टू फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. There are 5 vowels are there: A, E, I, O and U, and rest of all are consonants, that is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P and so on up to Z. These are all consonants. What is the definition and what is the difference between vowel sound and consonant sound? Vowel is a sound which is made with your mouth open. When you are spelling or pronunciation the vowel sound, जब भी आप vowel sound को pronounce करते हैं, you have to open your mouth. And whereas consonant is a sound made with your mouth fairly closed. जब भी आप consonant sounds को pronounce करते हैं, तब you don't have to open your mouth widely. For example, B, C, you don't have to open your mouth. Understood? And second main difference is vowels are independent whereas consonants are dependent. For example, let's look at this chart. Why we call vowels as independent and consonants are dependent means, ये जब भी आप vowel sounds को आप pronounce करते हैं, सी ये ई, एक ही साउंड में, एक ही शॉट में उसका साउंड ख़त्म हो जाता है. वेराज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड इट नीड्स सम अदर हेल्प, लाइक सम अदर साउंड्स हेल्प, लाइक बी में ई जॉइन होता है, बी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ई साउंड. सी में ई बोले ई ऐड हो रहा है, सो जे एम ई प्लस एम और ये और A plus R. Whereas for vowel sounds we don't need any help, right? A single letter, एक ही शॉर्ट में ख़त्म हो रहा है इसका साउंड. B, I, O and U. आपको क्लियर हो गया ना वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बीच में जो भी डिफरेंस है. Y को एक स्पेशल पावर दिया गया है because it acts both as vowel and consonants. Sometimes Y acts as vowel and sometimes it acts as a consonant depending upon its position in a word. वर्ड में Y की पोजीशन के हिसाब से, मतलब उसके यूसेज के हिसाब से हम Y को कॉन्सोनेंट या वोवेल बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज़ गॉट अ सुपर पावर. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वर्ड्स. एक और बात, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिनमें वोवेल या कॉन्सोनेंट ना हो. हमेशा हर वर्ड में कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. लेट्स हैव ए लुक. कैट, CAT. हियर A इज अ वोवेल एंड C and T आर कॉन्सोनेंट्स. इन एग, EGG, E vowel, GG आर कॉन्सोनेंट. ऑयल, OIL, I is the vowel, O and L are the consonants. Top,
in top वो is vowel and T and P are consonant. Cup, C-U-P, U is vowel and both C and P are consonants. And यह मैंने आपको बताया ना, Y has got a superpower. And so just look at this, Y. Here Y is a vowel because Y takes the sound of I, W-H-Y, Y, I. In pretty, here also Y is a vowel because it takes the sound of I, pretty, I. Okay, I will write another example, bicycle. Here in bicycle also Y takes as vowel because bicycle, Y take the sound of I, right? And move on to this, U and yes. Here Y in these two words takes the sound of ya. Ya. यहाँ पे यू और यस या का साउंड ले रहे हैं, तो सो दीज और हियर वाई इज अ कॉन्सोनेंट। एक हिंट दूँ, हम कैसे पहचाने कि वाई कब वोवेल है और वाई कब कॉन्सोनेंट है। whenever y used in the beginning of the word देन वो कॉन्सोनेंट है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस टॉपिक, ओके। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पूरे 26 लेटर्स है। अपर केस दीज आर अपर केस लेटर्स and lower case these are lower case, that is small case letters. And in out of 26 alphabets we have both vowels and consonants. Vowels are A, E, I, O, U, that is 5, and rest of all are consonants. Whenever we use a vowel, before that we have to add an, and for consonants we use a. Y has got superpower because sometimes Y acts as a vowel and sometimes it acts as a consonant. It depends upon its position in a word. I have clearly explained about this, okay. Examples of vowel and consonants जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, those are vowels and these one are consonants, right. Y takes as vowel and here it takes as consonant. Why? Because here Y takes the sound of ya, and not only that Y beginning में use हो रहा है। I hope you all understood this class very well. Inshallah we'll see you soon in the next class. अगर आपको मेरी ये क्लास समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके गाइस, आई होप इंशाल्लाह आप सबको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। बस मैं एक स्टार्ट टचअप दी हूँ मेरी वीडियो के लिए बस। एंड हाँ, एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि हम नॉलेज के मामले में एक्चुअली व्हेन कम्स टू नॉलेज, जब भी हमें कुछ पता भी हो, अगर हम किसकी नॉलेज भी है, अगर कोई उसके बारे में कह रहा है, फिर भी हमको उसको एक बार सुनना चाहिए, ताकि क्या पता उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट निकल जाए जो कि हम नहीं जानते। यदि आपको भी पसंद आया होगा ये वीडियो, इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें। क्या पता किसी को शायद इसकी ज़रूरत हो भी सकती है। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर इज़ इट डजेंट मैटर व्हाट्स योर एज इज़ एक्चुअली। आप कोई भी उम्र के हो, स्कूल गोइंग चाइल्ड हो या फिर कॉलेज गोइंग हो या फिर कोई भी हो, इंग्लिश लैंग्वेज हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो ग्रामर के जो भी ट्रिक्स होते हैं, अगर इसको हम अच्छे से फोकस करेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर ऑल्सो। सो गाइज, मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए आप सब लोग, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।